Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya to my family, my world. Uh, Hello Meenakshi, Om Namah Shivaya, how are you all? Very nice to see you. Om Namah Shivaya Anjana ji, Om Namah Shivaya, very nice. I hope my sound is okay today. Om Namah Shivaya Sanjay ji, very nice to see you on live. Is my sound is okay? Is audible to you all? Om Namah Shivaya, very nice, very nice. Welcome Sanjeev ji from Allahabad. Om Namah Shivaya, thank you for joining this session. I am so happy that people are gradually joining this session. Hello Beatrice, how are you? Please write down from where you're watching. Wow, very nice. Everything is perfect. Let all my family should join and we'll start. Hello Anmol, how are you all? Hope everything is perfect and enjoying this lockdown period. Yes, this is a God-gifted idea that we meet every evening 7:30 for meditation, and this is a fantastic lifestyle speaks. You know, that's fantastic. Very nice. Very nice. Let all people join and then we'll start. Very nice. Voice is good. Yes, perfect. Today voice is good. I am happy. From few last days, and I was observing that my session was having some problem of voice was not coming perfectly. Hello Army, how are you? Hope everything is perfect with you. We are all one in this moment and we all are working for each other. Hello Sweta, how are you? Om Namah Shivaya. Thank you so much for joining live session. Yes, light is also perfect. I'm so happy that you people are at least spending a good quality time sitting at home. This 7:30 to 8:30 merging with the infinite, remembering Shiva and remembering the infinity and merging with the infinity. This moment is the perfect gift for the entire human body to, to experiencing this beautiful alignment with the Shiva, beautiful alignment with the entire universe. That's fantastic. Hello Abhishek, fantastic. You joined, very nice. Hello Neelam, how are you? Om Namah Shivaya, thank you for joining. Let more few people join, then we'll start our session meditation. Wow, very good, very good. And how everybody is spending their whole day? Please write down out, and let me know how this time is giving you some different experience, how you are experiencing your spiritual being, how you are coming close to yourself, what this time has gifted you, what you are receiving in this time as a best gift for the entire life. Please think on this. Please write down your experience, and so that that experience will serve so many person who is watching us and doing meditation every day at the same time from last more than 22-23 days. Yes, we are doing this live meditation every day from last 22 to 23 days. Fantastic. Hello sweetie, Om Namah Shivaya. How are you all? Hope you all are enjoying the session sitting at your home. This is the gate gift. Very nice, very nice. Thank you Sweta ji for this experience you're writing, and I observe that you are sharing every day. Thank you so much for sharing, because many people are forgetting to share.
Until unless you are not sharing, you are not helping others to listen. This is very good. So please listen, please share, and we are collectively raising the global consciousness. Whoever is joining us in the meditation session every day at the same time, they all are the contributor to raising the global consciousness for the entire universe, for the entire global mind, the global thoughts. This is a fantastic, we are contributing. So we are the change maker. We are not simply sitting and passing our time every day doing nothing, but we are contributing our time and merging with the infinite to change the global consciousness. So you are a change maker. You are a philanthropist. Philanthropists are, there are many kinds of philanthropists, but we people are the family who are joining in this session. They are the contributor of raising global consciousness. So thanks yourself, close your eyes and thanks yourself for this moment, that yes, God has given me this chance to raising the global consciousness with this collective efforts. Fantastic. So today we are going to start dhyana, meditation. Meditation for what? For meditation for experiencing peace, experiencing your higher self, experiencing your connection with source, experiencing your alignment with the source. So this moment is gifted moment we are experiencing to raising the global consciousness. The entire human being on this earth has a collective mind. Everyone is thinking the same thought. Everybody is producing the same anxiety. Everybody is experiencing the same stress. So collective mind is experiencing collective stress. So what we can do, the few people on this earth, they are injecting their positivity into the collective global consciousness. Through how? Through coming together, praying together, and healing together to this entire world. And we do this by doing what? We are doing by doing dhyana, observation, going into the source. And while going into the source, you connect with the higher source. Your source is the source of the entire universe. Your source is the source of this entire existence. So meditation is not simply experiencing peace. Meditation is not simply experiencing the momentary good sense, momentary good feeling. Meditation is beyond that. What we are doing every day with the purpose of love, life, humanity. We work for humanity, we live for humanity, we breathe humanity. Humanity is our core of our organization. Humanity is the core of our organization. And what is the slogan? Is love, life, humanity. You must learn love. If you are not learning love, because you are not aligned. You are not aligned. So you must learn love, because you are a love. You are the extended experience of love. Your being on this earth is because of love. You made up with love. So you are a complete embodied by the love, compassion, So this is our real slogan. This is our real mission of the Parampran Yoga, of the PPY Yoga. So love is the first point. Life is, you must live the way you can. You must live the way you can, but consciously. Life must be lived by you consciously. Consciously means you should aware what you are doing. You should aware what is your happiness. You should know what is the contentment, how you are content within. So this is a life.
and the humanity, you know everything about the PPY, what we are doing since last 20 years, working for the children, working for the humanity, working for the needy people, always there to ready to serve, you know. This is our slogan, and this slogan becomes very strong when we meditate. This mission gives you more confidence when you do meditation, when you connect with your own self. Because unless you are not connecting to yourself, then what happens? You are doing it, but on the surface level. But if you are connected to your own self, you know who you really are. Then if you are doing humanity, then what happens? Then your work, your action, and the source of action becomes one. Mind it. Your action and the source of action becomes one. Then you do with more joyful attitude. You do with more soulfully, you know. This is our meaning. This is our existence. This is our meaning of our organization. And for this, we have aligned here to meditate. सब लोग शांति से बैठ जाएं, इसीलिए अब हम ध्यान शुरू करेंगे, है ना। आज का ध्यान थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि हर दिन हम लोग एक नए तजुर्बे को एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोग नई अपनी डिफरेंट साइड को विजुलाइज करते हैं। हमारी इमेजिनेशन, हमारा अस्तित्व, हमारा सेल्फ, ये सारी चीज हम लोग एक डिफरेंट परसेप्शन से देखते हैं, है ना। चलिए, ध्यान के लिए सबसे पहला जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, द रिक्वायरमेंट इज अपने आप को कूल, रिलैक्स और एकदम ढीला छोड़ के शांति से बैठ जाएं। अगर आपको मन करे आंखें खोलने की तो आंख खोल के देखें, अगर मन करे सिर्फ सुनने की तो आंखें बंद करके सिर्फ सुने। अंडरस्टैंड? पहले अपने आप को रेडी कर लें कि अब हम लोग वी आर गोइंग इनटू द डीपर स्टेट ऑफ रियलिटी एंड वी आर गोइंग इनटू द डीपर सोर्स ऑफ आवर एग्जिस्टेंस बाय गोइंग इनटू द डीपर सेंस ऑफ आवर सोर्स। अंडरस्टैंड? पहले अपने आप को प्रिपेयर करें। व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ, then your soul will say, yes, I am ready to go into the more deeper state of consciousness. I am ready to go into more deeper state of consciousness. अब मैं अपने अंदर की गहराई में जाने के लिए तैयार हूं। जब आपका सोल ये कहे, जब आपकी आत्मा ये आपसे कहने लगे, जब आपकी अवेयरनेस आपसे ये कहने लगे, जब तक ये आपकी अवेयरनेस आपसे नहीं कहती है, तब तक आप आपके एक्शन एंड आपके इंटेंशन में नॉन अलाइनमेंट जोन में आप रहते हैं। जब आपकी आत्मा, जब आपकी सोल आपसे कहने लगती है कि चलो मिलके ध्यान करते हैं, चलो प्रभु को याद करते हैं। प्रभु मीन्स सोर्स। जब भी मैं प्रभु बोलूं, गॉड बोलूं, मतलब आप समझ लेना द सोर्स। सोर्स मतलब जहां से ये सारी चीजें उत्पन्न हुई हैं, ये पूरी एग्जिस्टेंस में हम लोग आए हैं। तो हर शाम संध्या देने के तौर पे, जैसे हर घर में संध्या दी जाती है, अगरबत्ती जलाई जाती है, सुगंधी जलाई जाती है, दीप जलाया जाता है, शाम के वक्त प्रभु को याद किया जाता है, लोग प्रार्थना करते हैं, लोग थोड़ा सा कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। ठीक उसी तरह जो लोग मेडिटेटर होते हैं वो सुबह भी मेडिटेट करते हैं और शाम को भी मेडिटेट करते हैं। पहले अगरबत्ती जला ली, दीप जला लिया, घर में सुगंधी आ गई, सब लोग शांति से बैठ गए, पैर हाथ धो लिया और एकदम डीपर शांति के एक्सपीरियंस को अनुभव करने के लिए इस समय नॉन डिस्टर्बिंग मोड में चले गए। कोई और तीसरा कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ ध्यान, सिर्फ और सिर्फ उनका सुमिरन है। किनका? सोर्स का। उसको आप कोई भी नाम दे दें, राम जी दे दें, कृष्ण दे दें, गीता दे दें,
भगवान दे दें, दुर्गा माँ दे दें, कृष्णा दे दें, एनी 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 आपकी जो कॉन्शसनेस है, आपके जो आपने कलेक्ट किया है उसको आप दे दें, बट फाइनली वो उसी के सोर्स हैं, है ना, वो सोर्स के ही डिफरेंट एक्टिविटी हैं। आइए हम लोग सब लोग बिल्कुल शांति से, हैप्पीली, एकदम हैप्पीली, स्माइलिंग एटीट्यूड के साथ अपने अनंत के स्वयं में जाने की चेष्टा करें। अपने शरीर से पूछें, आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस द रिलैक्सेशन? आपकी बॉडी आपसे कहेगी यस आई एम रेडी। Ask your breathe, are you ready to align with my own existence? सांस भी आपसे कहेगी yes I am ready. Ask your idea, are you ready? Idea means your thought, your mind, your intention, your attention, your surrenderness. Are you ready? आपके पूरे अस्तित्व से एक मुस्कुराता हुआ यस आप देखेंगे, मुस्कुराता हुआ हाँ, स्वीकृति, परमिशन, अलॉटमेंट, यस, एग्रीड, अप्रूव्ड, ग्रांटेड। कौन ग्रांट कर रहा है और किसको ग्रांट कर रहा है? फिर आप मुस्कुराएंगे। ग्रांट करने वाला और ग्रांट किया जाने वाला वही अवेयरनेस है। It's the same you in the form of grant authority and the grantor. आप ही वो स्वयं हैं जो अपने आप के इस स्थिति को स्वीकृति देते हैं, और आप ही वो हैं जो अपनी स्वीकृति को लेते हैं। ये दोनों एक्शन एक ही जगह हो रही है। जब इस स्थिति में आप रहें, शरीर धीरे धीरे ढीला हो रहा है, मन धीरे धीरे शांत हो रही है, सांसें धीरे धीरे धीमी हो रही है, हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो हो रही है, हमारी नाड़ी धीरे धीरे स्लो हो रही हैं, मानो पूरी पृथ्वी रिलैक्स कर रही हो आपके साथ, मानो पूरी यूनिवर्स रिलैक्सेशन में आपका साथ दे रही हो। आपके साथ साथ पूरी ब्रह्मांड भी रिलैक्स को एक्सपीरियंस कर रही है। ये आपका सत्य, ऑनेस्ट और रियल पहचान है। आप जो हो मूल मायने में आपकी जो रियल अस्तित्व है वो यही है। बाकी सारा दिखावा है, नाटक है, संसार है। जो आप स्वयं में सच हो
अभी आप अपने हाईएस्ट ऑनेस्टी को जी रहे हो, अभी आप हाईएस्ट सच्चाई को, ट्रुथ को जी रहे हो। हम हाईएस्ट ऑनेस्टी और ट्रुथ को कैसे पहुंचे? शांत होके, स्थिर होके, समर्पित होके। और ये समर्पण हमें शरणम गच्छामि को ले जाता है। शरणम गच्छामि किसका? अपने ही अस्तित्व के उस अनंत स्वरूप का, अपने ही अस्तित्व के उस विराट अनंत स्वरूप का, जिसे इनफाइनाइट कहते हैं। और यही अनंत शिव है। संध्या का इससे अच्छा भजन, इससे अच्छा कीर्तन, इससे अच्छा सुमिरन और क्या हो सकता है कि आप अपने अस्तित्व के साथ पूरी ब्रह्मांड के अस्तित्व में विलय, इस खूबसूरत से पल को अपनी अंतरात्मा से प्यार करें। विलय हो जाएं दूध में पानी की तरह। यू आर कलरिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को रंग रहे हैं। किसके रंग में? उस अनंत के रंग में। और उसका कलर क्या है? इट्स अ कलरलेस एक्सपीरियंस, इट्स अ फॉर्मलेस एक्सपीरियंस, जिसका कोई रंग ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, जिसकी कोई लोकेशन ना हो। हम सिर्फ उसे महसूस या अवेयर कर सकते हैं। हमारी अवेयरनेस में ही वो समाया रहता है। हमारी अवेयरनेस में ही प्रभु समाये रहते हैं। If you are experiencing any kind of thought is bombarding, or you are distracted by the thoughts which is non-related with this situation, with this moment, please return back to your this awareness. अगर आपके पूर्व विचार अभी आपके चेतना में कहीं दिख रही हो, या आपको ऐसा प्रतीत होता हो कि आप भटक गए, तो कोई गिल्ट नहीं फील करती है। जस्ट रिटर्न बैक टू योर ओन जेंटल सेल्फ, जेंटल एक्शन। मन जाता है, फिर वापस उसे खींच के ले आए प्रभु शरणम। प्रभु शरणम मीन्स अपने अस्तित्व के सोर्स में विलीन होना।
अब आप अपने जीवन का सबसे पहले मंदिर को याद करें। द फर्स्ट टेम्पल यू विजिटेड of your life, of your awareness. जब आप बहुत छोटे थे तो अपने जीवन के इस पूरी जर्नी में सबसे पहली मंदिर आपने किसके साथ, किस समय, किस लोकेशन में, कैसा वो मंदिर था, किस भगवान का वो मंदिर था, कौन से कपड़े पहने थे, इसे स्मरण करें। जस्ट लोकेट, इंक्वायर। शाम था या सुबह थी, कौन सी प्रसाद आपने चढ़ाई थी, मंदिर कैसा दिखता था, उसके आसपास की कैसी लोकेलिटी थी, सुबह था या शाम था, इस पूरे डिटेल में जाएं। और धीरे से अपने से पूछें कि क्या आपको ये पता था उस वक्त, जिस वक्त आप वहां मंदिर गए थे, जिस उम्र में गए थे, क्या आपको अभी आप जिस हालात में हैं, अभी आप जैसे जी रहे हैं, इस जीवन का क्या कोई भी आभास था वहां? आपके जीवन की एक एक पहलू जो आपने उस समय से अब तक बिताई है, क्या आपको एहसास था हम ऐसे दिखेंगे, हम इस शहर में रहेंगे, मैं ये जॉब करूंगा, हमारे साथ ये घटना होगी, हम इस तरह की परिस्थिति से गुजरेंगे? क्या आप जानते थे? उस वक्त कुछ नहीं पता था। और आज जिस मोमेंट को आप जी रहे हैं, उस वक्त से इस वक्त आते समय, आते के साथ, चलने के साथ, कौन आपके साथ चल रहा है? कौन सूक्ष्म शक्ति आपको जिला रही है? कोई ना कोई तो एक है जो सूक्ष्म रूप से आपके हर कदम में आपके साथ होता है। दुख में, सुख में, हताश, निराश, मजबूरी, और हर वक्त कोई ना कोई एक सूक्ष्म शक्ति हर वक्त आपके साथ होती है। अब मैं ये समझाऊं कि बचपन में गया हुआ वो मंदिर का पूरा दृश्य और अभी के इस वक्त की पूरी परिस्थिति में क्या चीज कॉमन है? द अवेयरनेस। शरीर बदलती चली गई, परिस्थिति बदलती चली गई, लेकिन प्लेग्राउंड, द परफॉर्मेंस स्टेज, ये तब भी वही था
आज भी वही है। उसी अवेयरनेस से आप अभी वहां के स्थिति को मेमोराइज कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। उसी चेतना से अभी की स्थिति को आप अनुभव कर रहे हैं। और यही अनुभव, यही अवेयरनेस जो सूक्ष्म शरीर है आपकी, उसके साथ उसकी कृपा की आभार हर सांसों में हमें देना है। हे प्रभु, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस लाइफ। दुनिया के किसी न किसी मोड़ में आप जिस वक्त जैसी भी जिंदगी को जी रहे हैं, एक बार जरा मुड़ के देखें। आपकी तरह की जिंदगी को जीने वाले हजारों लाखों लोग तरस रहे हैं। तो प्रभु ने जिस लग्जरी को आपको दिया है, प्रभु जो कंपार्टमेंट अलॉट की है, उसको ऑलवेज अवेयर करें। ऑलवेज अपने हृदय से धन्यवाद दें। और जिन लोगों ने भी आपके जीवन में थोड़ा सा भी अंश दिया हो, चाहे वो किसी स्वरूप में, भगवान बन के, भगवान कभी सामने नहीं आता है, वो आपकी मदद करने स्वयं नहीं आता है, वो हर समय अपने दूत भेजता है। भाई के स्वरूप में, पड़ोसी के स्वरूप में, दोस्त के स्वरूप में, अच्छी आइडिया के स्वरूप में। तो अपने जीवन में प्रभु का दूसरा स्वरूप, जिस भी माध्यम से आपको, जिस भी स्वरूप में उसने सहायता की हो, साष्टांग प्रणाम करें। साष्टांग प्रणाम मतलब हमारे 8 अंग मुड़े और हमारा सर धरती पे टच हो। जब ये सरेंडर आप करते हैं, जब ये समर्पण आप करते हैं, तब फिर आपका मूल स्वरूप उस महान परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठ जाता है।
शिवा आज हम इस पूर्ण शांति की अवस्था में अपने स्वयं को समर्पण, अपने सूक्ष्म शरीर के 5वें चक्र के बारे में बात करेंगे। कुंडलिनियों में 5वां चक्र हमारे गले में अवस्थित होता है, गले के बिल्कुल मध्य में। इसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, जो हमें हर स्वरूप में शुद्धि रखता है, शुद्ध करता है। सारी प्यूरिफिकेशन यहां से होती है फिजिकली। जब फिजिकली होती हैं तो फिजिकल का भी अपना एक नॉन फिजिकल पॉइंट होता है, जिस पॉइंट में प्राण की फ्लो चक्र की तरह मूव होती रहती है, घूमती रहती है। सेल्फ डायनमो उस चक्र को ऑलवेज घुमाता रहता है। उस डायनमो की कैपेसिटी और क्वालिटी आपके थॉट, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी जीवनचर्या से तय होता है कि उसकी कैसी क्वालिटी होगी। जब विशुद्धि चक्र हमारा ब्लॉक होता है या डिस्टर्ब जोन में होता है तो हमें खांसी, ग्लैंड्स, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती हैं। गले से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड, और थायराइड जो है वो हार्मोनल बैलेंस का केंद्र है। जो हमारे पूरे शरीर में हार्मोन्स बैलेंस होती हैं, इसमें जो थायराइड है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे पूरे शरीर के हार्मोनल एक्टिविटी को वो बैलेंस करती है। हमारी वॉइस, हमारे शब्द, हमारी क्वालिटी ऑफ साउंड, ये सब विशुद्धि चक्र के प्रोडक्ट हैं। हम कैसा बोलते हैं, कहते हैं उसके मुख पे सरस्वती बैठी है, उसके गले में सरस्वती है। इसका मतलब आपका विशुद्धि चक्र जागृत है। आप विजडम की बात करते हैं, आप स्पिरिचुअलिटी बात करते हैं, आप गाना गाते हैं, आपके बहुत मधुर स्वर हैं, मधुर शब्द हैं, मधुर एक्सप्रेशंस हैं, आप बहुत अच्छे सेंटेंस को डिलीवर करते हैं, बहुत मधुरता है। आप देखेंगे जिनका विशुद्धि चक्र ब्लॉक्ड है या परफेक्ट काम नहीं कर रही है, वो कितना भी मधुर होना चाहे, उनकी मधुरता और उनके स्वर, उनकी क्वालिटी ऑफ वॉइस मैच नहीं होती। बहुत ध्यान से सुनना। उनकी एक्टिंग टू बिकम स्वीटर, एक्टिंग टू बिकम बहुत नरम, बहुत मधुर, वो कर तो रहे हैं, इंटेंशन उनकी हेल्प कर रही है, लेकिन उसके स्वर साथ नहीं दे रहे। स्वर कर्कश, वो कान कर्ण प्रिय नहीं। बहुत स्वरूप में आप देखेंगे कि किसी को डिलीवर करना नहीं आता, बात बोल सही रहे लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। विशुद्धि की प्रॉब्लम। और कई लोग उसी चीज को बहुत मधुर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं,
उनके गले की इतनी करामात होती है कि आप उसे तुरंत एक्सेप्ट करते हैं। आपके पूरे जीवन में विशुद्धि चक्र का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप जैसा व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, आपके शब्द को जैसे लिया जाता है, आपके शब्द से जैसे लोग प्रभावित होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आज उसी का रिफ्लेक्शन है आपकी इस तरह की लाइफ। अगर आपके शब्द, स्वर, इंटेंशन की अलाइनमेंट ना हो तो शायद आप ऑफिस में भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपके प्रॉब्लम हर जगह दिखेंगी। लेकिन कितना भी डिफिकल्ट वर्ल्ड हो, लेकिन अगर आप मधुर भाषी हैं, आप दिल जीतना जानते हैं, तो आपका काम होता है। लोग आपको सामने से आके कहते हैं आई वॉन्ट टू हेल्प यू। तो इसमें विशुद्धि चक्र का बहुत बड़ा रोल है। आप जैसे कई लोग देखते होंगे बहुत मोटे हो गए, कई गर्ल्स को आप देखेंगे मूछें आ गई। हार्मोनल डिसऑर्डर ऐसी होती है कि सीधा वो हमारे ब्रेन और हमारे ब्रेन के रिस्पॉन्स को रिलेटेड रहती हैं। तो इस पूरे शरीर को कंट्रोल हार्मोन कर रहा होता है। हमारी बीमारी, हमारी सिलेक्शन ऑफ बीमारी, जो डिजीज हम अट्रैक्ट हमारा शरीर करता है, इसमें हार्मोन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आइए, विशुद्धि चक्र जब अच्छी होती है तो हम मधुरभाषी होते हैं, ग्लैंड्स की हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, थायराइड्स की हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, और इन सारी चीजों से हम अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और इसका बीज मंत्र है हम। जैसे अनाहत चक्र का याम था, जो हमारी विशुद्धि चक्र है, उसका बीज मंत्र है हम, HAM, हम। और इसका जो कलर है वो है स्काई ब्लू या नेवी ब्लू। नेवी ब्लू और स्काई ब्लू का सूर्य जैसा चक्र अपने गले में इमेजिन करें और उसके मध्य एकदम गर्भ में, बिंदु में अपने स्वयं को बिठाएं, जैसे कि आप ध्यान की स्थिति में वहां बैठे हैं अपने ही शरीर के गले में, और मंत्र जाप कर रहे हैं हम। इस परम आनंद को आनंदमयी कहते हैं। इस परम चैतन्य को चैतन्यमयी कहते हैं। इस परम सत्य को सत्यमयी कहते हैं। इस स्वरूप को अपने विशुद्धि चक्र में अवस्थित देखें।
अपने शरीर को अपने मन के साथ इस सुंदर से शांति की अवस्था में रहने देने से अच्छा इस शरीर से लिया गया कोई और दूसरा उत्तम कार्य नहीं है। इस शरीर से किया गया सर्वोच्च उत्तम, सबसे उम्दा, सबसे ऊंचा काम, सबसे परम काम अगर आप करते हैं तो इस शरीर से इस शांति की अवस्था को महसूस करते हुए उस शांति के परम आनंद लोक में विलय हो जाना। इससे बड़ा कोई और दूसरा कार्य अपने शरीर से आप नहीं करते। इसके अलावा जो भी कार्य करते हैं वो शरीर अपने लिए करता है, लेकिन शरीर से जब आप ये काम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप परमेश्वर का काम करते हैं। जैसे कि आप ब्रश करना नहीं भूलते, ठीक उसी तरह रोज समर्पण भाव, शरणम भाव को एक आदत बनाएं और कभी ना भूलें इस परम आनंद की ऊंचाई को प्राप्त करने में। हर वक्त आपके आसपास, आपके सूक्ष्म अवस्था के आसपास परम पिता परमेश्वर शिवा रहते हैं। आप जब उन्हें याद करेंगे तत्क्षण वो आपके शरण, आपके आसपास होंगे। जब भी आप ध्यान की अवस्था में, शांति की अवस्था में जब अपने स्वयं को देखेंगे, मैं आपके साथ कन कन में हर वक्त रहता हूं और रहता रहूंगा। ओम नमः शिवाय। इस आनंद की अवस्था में जब तक आपका मन करे इस संध्या को और खूबसूरत बनाने का, आप ध्यान करें। My infinite blessings to all. Om Namah Shivaya.